बहुत दिनों से ये देखा जा रहा है कि भारत में जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ खुलकर जो है काम करने के आगाज़ हो चुकी है। उस दिशा में प्रेजेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है बहुत सारे कदम ले चुकी थी। अभी ये लोग सीधे सीधे जो है चैलेंज कर रहे हैं डेमोक्रेसी को और संविधान को कि हम लोग इसके खिलाफ जो है खुल के काम करने वाले, ये जो चैलेंज ये लोग दे रहे हैं। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि अधिकार अहंकार बहुत दिन रहने वाली चीज़ नहीं है। आपके अहंकार को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की जनता जो है आपको डेमोक्रेटिक अंदाज में जवाब देने के लिए रेडी बैठी है। आपका जो अहंकार है अगले इलेक्शन में आपको रिजल्ट के ज़रिए में आपको दिया जाएगा वापस। जब भी बटन दबाएंगे वो बटन इस नीयत से दबाएंगे कि तीस्ता सेतलवाड़ को जो है इंसाफ मिले। ऐसे जितने भी मासूम लोगों पर आप झूठे केसेस डालकर इनको डराने की जो कोशिश करते हैं, आप याद रखिए जो इंसानी हुकूक के लिए, जो शहरी हुकूक के लिए लड़ते हैं, वो अपनी ज़िंदगियों को ऑलरेडी जो है बाय बाय बोल के आते हैं, क्योंकि उनको जीने का कोई जो है ख्वाहिश नहीं होती है। वो अपने सर पे कफन बांध के ही आते हैं। जो अपने मौत को नहीं डरते वो आपके झूठे और ये फॉल्स केसेस से कैसे डरेंगे। तो ये आपको क्लियर कट हम मैसेज देना चाहते हैं कि आज के दौर में सभी जो न्यूट्रल भारतीय हैं इनको ये सोचना चाहिए कि देश किस दिशा में ले जाया जा रहा है। इन सैफरान ताकतों को अगर हम अभी नहीं कुचलेंगे तो पूरा देश बर्बाद होने के कगार पर आके खड़ा है। अब मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से सभी भारतीयों को कि आप एक जगह आइए, इसकी मुखालिफत करेंगे। जो देश के संविधान के साथ खड़े हैं हम उनके साथ खड़ेंगे, जो संविधान की मुखालिफत में हैं हम उनकी मुखालिफत पुरजोर करेंगे, संविधान के दायरे के अंदर रहकर करेंगे। अगर ये संविधान के खिलाफ जाते हैं तो हमारे पास भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। See, she has been arrested under the false allegations, and of course we have a legal way to fight it out, and we don't know who is taking care of all those legal issues there. Probably, and again, the serious charges are not being framed against her. It is only that she has provided a false evidence and provided a false documents in the court of law. So I think that can be fought out. But the issue here is it is not about how she can be taken out of that particular legal issue. It's a question of how the government is trying to send a message to the people who are against the government, who speak against the government, who raise the voice against the government. And it is not. It is not only the question about the arrest of one person. It is like the putting the whole lot of mass. Who are against what the government is doing since last 8 years. You find continuously the government, is trying to suppress the people who raise a voice against the government. It is trying to suppress the people who talk against the government and talk about the policies of the government. So I think this is the way the government is trying to suppress the voice of the people against the government, and I think it cannot be tolerated because we are in a democratic system. We have a law, and whatever the government is doing it is unconstitutional and it is illegal. And if you keep on doing the same thing, I think today no advocate can be free, because every advocate has to be put behind bars. Because when we fight a case in the court of law, we don't win all the cases. We lose the cases. When we lose a case, do you mean that we have provided a false evidence, so we could not win a case, so we should be put behind the bars? So this is completely unwarranted, and it is complete and illegal detention. And the way they are treating the police officers, they know what happened in the system, because they were the people when the program happened in the Gujarat. And because of speaking the truth, if they are put behind the bars, and it is a strong message by the government saying that you cannot speak the truth. You have to be with the government. Whatever the government does, you have to tolerate. So this is the message probably the government want to send us, and I think the people of this country will not tolerate this. तो हर केस में जहाँ पे गलत इल्ज़ामात लगाकर किसी के ऊपर प्रोसीडिंग्स किया जाता है और साबित हो जाता है कि गलत इल्ज़ामात था, तो जो किया है इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कानून के अंदर इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस भी है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क में जो है कि पहले से ये नहीं आ रहा है कि जो कोई डालते था, देखिए ऐसे ही कि दहशतगर्दी की इल्ज़ाम बहुत सारे लोगों को सालों भर तक जेल के अंदर रख दिया गया है, और कार्रवाई के बाद ये पता चला कि वो गुनहगार नहीं थे, जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया था वो गलत था। तो उनके लिए क्या की है सरकार, उनके लिए क्या किया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये सवाल सब पूछना चाहिए, ताकि जब एक गलत इल्ज़ामात करते हैं तो जो गलत इल्ज़ामात लगाएं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया गया, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए।
इस मुल्क में अभी तक ऐसे कार्रवाई तो नहीं हुई है बहुत सारे केसेस। अभी पहली मर्तबा ऐसा चल रहा है कि तीस्ता सेटलवार जिन्होंने 30 साल से जो इस मुल्क की दस्तूर हिंद को बरकरार रखने के लिए, उसके लिए साथ काम करने के लिए जो काम कर रही थी, जो जिन्होंने गुजरात रेड्स के पहले बॉम्बे रेड्स के बारे में तो जो 10 सालों से काम कर रही थी, और सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की दौर से जो काम उन्होंने बहुत सारे दावे किए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर ज़िले में, हर जगह काम किए हैं। कानूनी दौर से जो इंसाफ मिलना चाहिए इसके लिए लड़ाई कर रही थी, उसकी जो काम के बारे में यही सुप्रीम कोर्ट जो ने इन बेस्ट बेकरी केस में ये बताया था कि गुजरात हाई कोर्ट इनके खिलाफ जो बात की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो लोग दरवाजे को खटखटाते हैं कोर्ट की, तो उन लोगों के अब काम के बारे में हमको ऐसा बात करना गलत होता है। तो अरिजीत पसाय, जस्टिस अरिजीत पसाय की जजमेंट में ये बात की थी। ये भी बताया गया था बेस्ट बेकरी केस में कि जहाँ पे जो केस चला, जो गुजरात में केस चला, जैसे केस चलाया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जैसे वहाँ पे जो नतीजा निकला और जैसे हाई कोर्ट में नतीजा निकला, इसके खिलाफ बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि इस स्टेट में इंसाफ नहीं मिल सकती। ज़रूरी ये है कि इसका रीट्रायल हो जाए बॉम्बे में। प्रोसिक्यूटर के बारे में कैसा प्रोसिक्यूटर काम करना चाहिए, वो हमारे लिए आज की तारीख में एक टेक्स्ट बुक है वो जजमेंट। सो वो बात बताने वाली सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सेटलवार को क्लीन चिट देने की जो जजमेंट आई है परसों, तीस्ता सेटलवार के ऊपर कार्रवाई के बारे में जिक्र करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं था। वो बात लेकर सरकार ने जो इनके ऊपर जो कार्रवाई शुरू की है, और आप एफआईआर देखें कि उसकी एफआईआर के अंदर जो गुनह का टाइम बताया गया कि 202 से आज तक के लिए उनकी साजिश है बोल के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दी गई, तो इल्ज़ाम गलत हैं। तो इनकी जो रिहाई इमीडिएट रिहाई होनी चाहिए, ये नीड टू बी सेट फ्री। और सुप्रीम कोर्ट के ये काम है कि सो मोटो एक्शन ले ले। हम सब वकीलों का ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले ले, उनकी जो अरेस्ट किया गया वो अरेस्ट को कैंसिल कर दे और इनको रिहा कर दे, बहुत ज़रूरी है।